नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दरअसल खेल का मैदान एक ऐसा मैदान होता है जहां पर अगर बड़ी बड़ी दोस्ती बनती है, लोगों के दिल जुड़ते हैं, तो बड़े बड़े दुश्मन भी वहीं से पैदा होते हैं। किसका जिक्र कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। स्वागत कीजिए तालियों के साथ हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंस का। So Andrew, could you get what I said? You said welcome, and I say namaste, Yes. India. That's very good. लेकिन Very good. हरभजन आपकी दाद देनी होगी। Yes. लंबे चौड़े ऐसे कि सामने आकर डर लग जाता है। आपने इनसे पंगा लिया था? डर तो मुझे अभी भी लगता है इससे। ऐसी बात नहीं है, बट ये ग्राउंड पे बहुत अग्रेसिव क्रिकेट हम लोग खेलते थे, पर ग्राउंड के बाद हम बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। हम मुंबई इंडियन के लिए इकट्ठे क्रिकेट खेले हैं और हमने वो दो ढाई महीने का जो टाइम था बहुत एंजॉय किया। हाँ। काफ़ी आपस में हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, मज़ा आया हमें आपस में। पर मुंबई इंडियन से पहले ये दोस्त तो नहीं थे आपके? Were you his पहले friend before देखो, the जब- IPL started? Yeah, when I moved from Deccan to Mumbai Mumbai Indians. Indians, we got on very well. We sat down one night and talked it through, and we had a hug and we got on. Ever since then, we've got on really well. We had one good year at Mumbai. We didn't win anything, but it was good to spend some time with him and get to know him as a man rather than playing against him. And when you're playing for your country, passions boil over and you get on the cricket field. You know what happened between both of you? I would also for our viewers I would tell it in Hindi. जब दोनों के बीच जो कुछ हुआ था उस वक्त ये कहा गया कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि जो भाषा थी उसको गलत समझा गया था और उस वजह से it was said that whatever you understood from what Harbhajan had said in that ill-famous series that we had in Australia, did you misunderstand him at that time? So that means, do you know Hindi now completely? Do you know the bad words that he says? No, it was just handled badly. It was just, as I said, it was a passionate thing. Cricket's a passionate thing. And then whatever transpired. We're over that and we've moved on and we're mates again now. They're still sticking there. They're still sticking there. The media guys are still sticking there. तो हरभजन उसके बाद दोस्ती करने में मुश्किल आई थी कि No, नहीं? not at all. He's a lovely guy. I mean, we have spent a lot of time together. Of course, as he said, when you play for your country, it's different. Of course, India, Australia is always very, very. और वो होना भी चाहिए शायद Of क्रिकेट course, मैच के होना अंदर। चाहिए. जब आप कंट्री के लिए खेलते हो, तो ऐसा होना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए. But I got to know him when he came to Mumbai Indian. He's a fantastic guy. Great fun to be with, and I've enjoyed his company. It's great to have him back in India and working with us. हाँ। Thanks लेकिन for जब coming क्रिकेट over. के मैदान पर इस तरह की दुश्मनी होती है तो क्रिकेट का मजा और बढ़ता है। बिल्कुल मजा दो गुना हो जाता है। दोगुना हो जाता है। बिल्कुल जब 2008 में हरभजन पाजी और we saw the fight between Andrew Simons and Harbhajan, that was means that मैच का मजा दो गुना क्या चार गुना कर दिया था। They say they love the rivalry. It's not just the media, the people love the rivalry. Yeah, I mean, where would cricket be without the rivalry? It'd be very boring, and that's not what we want. People want to see a battle out there, Of course, देखो पैशनेट होके क्रिकेट खेली जाती है और जब भारत के लिए मैं क्रिकेट खेला हूँ, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ ही नहीं, इंग्लैंड के साथ, पाकिस्तान के साथ, जिन देशों के साथ खेला हूँ, मेरा एक ही मकसद रहता था, मैंने मैच जीतना इंडिया के लिए और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े. Was he the toughest guy to deal with? Was he the toughest? Toughest guy to deal with? No, he's just having played with Harbhajan now. I realise he's a competitive man. He's an Indian Australian. Australians are very competitive, and he's a very competitive Indian. He's a passionate Indian. But they're the sorts of men you want to have in your team. You want to play with men who are passionate about their cause. तो अगर मैं पूछूं जितने लोग क्रिकेट यहाँ पर देखते हैं मैं उम्मीद हाँ Just to continue on that, as he said, passionate. It was great to have him with Mumbai Indian because of him, we had a lot of positivity in our team, and we ended up winning the championship for Mumbai Indians.
and it's great to have someone like him, Adam Gilchrist. You know, all these guys I played against, they were always tough to play against. But when they are playing for you, they play with a lot of heart. सबसे बड़ी राइवलरी किसकी लगती है अगर दो खिलाड़ियों की? एक तो हरभजन और साइमंस याद आते हैं, और कोई याद आता है? हाँ, विराट कोहली और डेविड वार्नर। विराट कोहली, डेविड वार्नर, और कोई? हरभजन और शोएब अख्तर। हरभजन और शोएब अख्तर। सचिन एंड शोएब अख्तर। हरभजन, आपका फेवरेट ओपोनेंट कौन है इस तरह का जिसको आप सबसे ज्यादा परेशान किया करते थे ग्राउंड में? क्या जी? सबसे ज्यादा जिसको ग्राउंड में परेशान किया आपने? सबसे ज्यादा क्या? जिसको ग्राउंड में आपने परेशान किया? इनसे ही पूछ लो जो देखो, अक्सर मुझे कहते हैं कि मैं परेशान करता हूँ, और वैसे इतनी किसी में दम नहीं था कि मुझे परेशान करे यार, कोई ऑनेस्ट, क्योंकि मैं, वो पंजाबी में बोलते टीठ, मतलब टीठ को क्या बोलते हो यार हिंदी में? क्या बोलोगे आप टीठ को? नहीं, ढीठ ही बोलते हैं। हाँ, ढीठ ही बोलते ढीठ। हैं। हाँ, ढीठ। मैं बहुत ढीठ किस्म का आदमी हूँ, बचपन से ही जिद्दी, तो वैसा था। हाँ, अड़ियल जिद्दी वो था, तो पंगा ही नहीं लेता था यार। जो पंगा लेता था फिर मैं उसको घर तक छोड़ के आता था, चल आ तेरे को दिखाता हूँ। Andrew, was that true of you at some point? What Harbhajan says is that he's got that typical arrogance about him, which may disturb the opponents very badly, but it's good for the team. So, did you on purpose do it at times to just ruffle the opposition? Yeah, I mean, it's tactics. Sometimes ruffling a few feathers is a tactical move. Yeah, that's all we used to use it for. Sometimes it becomes humorous as a result, but yeah, it's a tactical thing. क्योंकि हरभजन, जब विराट कोहली को हम देखते हैं तो वो सामने सामने अगर उनसे मुलाकात होती है तो बहुत ही ऐसे शख्स हैं जैसे एक जेंटलमैन होगा, लेकिन ग्राउंड पर जाकर ऐसा लगता नहीं है। वो भी टैक्टिक्स है यानी कि? यार, आपको मुझे देख के गुंडा नजर आता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मैं भी देखो कितना जेंटलमैन लग रहा हूँ। देखो, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। देखो कितना अच्छा बोल लेता हूँ। तो आई मीन सब अच्छे ही होते हैं जब आप, लेकिन देश के लिए खेलते हो तो वो पैशन होना चाहिए, और अगर बिना पैशन के जाओगे तो फिर ग्राउंड पे जाने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ आप मैच खेलने जा रहे हो और इंडिया को जिताने जा रहे हो, और बिना पैशन के मैच जीतना बहुत मुश्किल है, कोई भी काम करना मुश्किल है। इस बार तो धमकी मिल गई है टीम इंडिया के खिलाड़ियों को, 4 लोगों को खासकर आईसीसी की तरफ से, कुछ किया तो देखो बीच में ही बैन लग जाएगा। नहीं, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, बट एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स कि आप ग्राउंड पे किस तरह की क्रिकेट खेलते हो, पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलते हो। उस इंटेंट में बहुत सी चीज़ें जो हो जाती हैं, जो आपको लगता है कि सही है उस वक्त पे, हाँ। तो अगर आपकी टीम जीत रही है, आपको उस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर उससे अच्छी हो रही है, तो क्यों ना करो। टीम इंडिया के भीतर इस वक्त कौन है ऐसा जो अपने एरोगेंस से जो दूसरी टीम है उसको परेशान कर देता है, अपनी ढीठ होने से, ढिठाई से? एरोगेंस नहीं मैं कहूँगा, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस मैं कहूँगा इसको। अंग्रेजी में कोई सटीक शब्द दरअसल है नहीं इससे जुड़ा हुआ, अड़ियल का कोई सटीक शब्द नहीं है, इसलिए कौन टीम इंडिया में लगता है ऐसा? अड़ियल, देखो हर प्लेयर को अड़ियल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अड़ियल नहीं हो तो फिर तो दूसरी टीम आप पे हावी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से शिखर धवन एक ऐसा अड़ियल खिलाड़ी है जो मूंछ को उठा के बात करता है, और ऑफ कोर्स विराट बहुत अड़ियल खिलाड़ी है, जो एक बार अड़ जाता है तो फिर वो आउट भी नहीं होता है और आपकी ना जान भी निकाल देता है। In the present Indian team, who do you think is the most is the one who actually frustrates the opposition with his attitude? Is it Virat Kohli? Because the Australian press had a lot to write about him. Absolutely. Yeah. Yes. Yeah, he's got that cheekiness about him, but he's playing fantastic cricket. So while he's doing that, it seems to be working for him. So if I was Virat, I wouldn't be changing anything. तो यहाँ पर कितनों को लगता है कि विराट कोहली ज्यादा खड़ूस हैं या शिखर धवन? कैप्टन बन गए जिस दिन, उस दिन तो दिक्कत हो जाएगी फिर। विराट कोहली का आगा इतना एग्रेसिवपन अभी बिना कैप्टन बने दिखा होता है। पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका नेचर दिखा था, उन्हें 103 मारे थे। बिल्कुल। और अगर कोई कैप्टन उनके तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना मारेंगे। भाई मेरे बोला क्या है? मेरा क्वेश्चन जो है वो बजी सर के लिए,
कि अभी जो इंडियन टीम सेलेक्ट की गई है क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसमें युवराज का ना होना इनके लिए कैसा लगेगा? दरअसल मुझे लगता है सिलेक्शन की चीजों को अब कुछ देर के लिए पीछे ही छोड़ना चाहिए। क्या जी? युवराज सिंह का न होना टीम के लिए कैसा है? क्या कोई युवराज की जगह उस तरह से परफॉर्म कर सकता है इस बार? देखिए अभी रायना ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है पिछले मैच में। आई थिंक उसने युवराज के जैसी इनिंग खेली है। युवराज जैसा प्लेयर तो कोई नहीं हो सकता है। कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। युवराज जितने बड़े प्लेयर हैं उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं। मुझे मालूम है, मैं भी था भाई तब टीम में। तो युवराज ने 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं, 2007 वाला और 2011 वाला। युवराज जैसा कोई नहीं हो सकता, बट वैसे प्लेयर हैं हमारे पास जो उनके नक्शे कदम पर चल के वैसे मैच जिता सकते हैं। जैसे रायना है, मैं उनको देखता हूँ, बहुत कैपेबल प्लेयर हैं, नीचे से आके बहुत तेज़ी से रन बनाते हैं। ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट महेंद्र सिंह धोनी's contribution. He's probably one of the biggest मैच विनर फॉर इंडिया। पिछले 5 साल से 7 साल से जब से क्रिकेट खेल रहे हैं और आने वाले जब क्रिकेट खेलेंगे, ही इज़ ऑलवेज गोना बी द की फॉर इंडिया टू सक्सीड। What do you make of the current Indian team? Do you think they're challenging for that final spot for the World Cup? Can they defend it? Yeah, I think they can. I think what the Indian people have probably misunderstand probably misunderstand slightly is that the Australian series is over. It's finished with, and the World Cup's always a newer, big start for everyone. You just start afresh, and that's where the Indian people need to understand this is a completely new job, and they've started well. At their first game, they played very good cricket, and from here, they've got an opportunity to, if they beat South Africa, well, then their confidence should go through the roof, and then they can really march on from there and become serious contenders to defend their trophy. हरभजन, क्या हम ये समझ सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला होगा वो काफी हद तक बता देगा कि टीम इंडिया का ये टर्न अराउंड है जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हम लगातार हार रहे थे और उसके बाद वर्ल्ड कप में पहला मैच जीते हैं? क्या वाकई इस मैच से वो परख होगी कि हम कहां तक आगे जा रहे हैं? डेफिनेटली साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है, अगर उनको हराते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये मैच इम्पॉर्टेंट है, मैं इसलिए बात करना चाहूँगा कि इसको ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये मैच जीतना ही है। हमने कैसे भी रिज़ल्ट मिले, अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, अगर हम उनसे जीतते हैं तो भी अच्छा है, पर अगर हम उनके साथ फाइट करके हारते हैं, वैसा गेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वन साइडेड गेम। अगर वैसा गेम हो रहा है तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि आई वांट द टीम टू पीक इन द राइट टाइम, एट द राइट टाइम, जो मतलब क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। क्योंकि हमें पता है कि जो पहला राउंड है उसमें 4 टीमें जो आगे जाने वाली हैं, उसमें इंडिया दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ज़रूर आगे जाएगी। पर जो 3 गेम्स हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, वो मेन गेम्स होने वाले हैं। उस गेम तक जो है अपना फॉर्म आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म को आगे ऊपर बढ़ाते जाने के लिए। उम्मीद भी करते हैं कि यहाँ से जीत होगी, क्योंकि अभी तक किसी भी वर्ल्ड कप में हम दक्षिण अफ्रीका को नहीं हरा पाए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान हमें नहीं हरा पाया है, दक्षिण अफ्रीका को हम नहीं हरा पाए हैं। इस बार किस्मत बदलेगी। किस आधार पर ऐसा लग रहा है कि इस बार किस्मत बदलेगी? विराट और रैना। विराट और रैना आपके हिसाब से? MS धोनी, मोहम्मद शामी की वजह से? रोहित शर्मा। On the basis of the last match the India won, we can predict that India will win the coming match. And we Indians can analyze it in a lot of ways, but when you look at the Indian team, do you think it's only the Indian batting which can make us win? No, I don't think so. I think if the Indian spinner Ashwin stays fit, he's a key man for India. He bowls through that middle period. He can hold the game up, low scoring overs, and he can take wickets through that middle period and put pressure on the opposition. So if he can stay fit, he'll be a big advantage for the Indian side. चलिए हम इसी सवाल पर हरभजन की भी राय लेंगे, लेकिन मंच पे तो 2 दिग्गज इस वक्त विराजमान हैं, उन्हें देखकर हम यही स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि दिल किस तरीके से जुड़ते हैं। और यहाँ पर तो विश्लेषण जुड़ रहा है, एक ही टीम इंडिया किस तरीके से जीतेगी वर्ल्ड कप,
उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, चैंपियन कैसे बनेंगे फिर से। और अगली चुनौती जिसका जिक्र साइमंस कर रहे थे कुछ देर पहले, अश्विन बहुत अहम हो सकते हैं, और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमारा क्या हो सकता है अगला, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी टीम है, जितने एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के सब कहते हैं वो आगे जरूर वो फेवरेट्स हैं इस बार। नहीं, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो तो उनकी राय है, मेरी राय ये है आप भी कि एक्सपर्ट की भूमिका में हैं। नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं वहाँ से खेल के आया हूँ और बहुत ज़्यादा खेल के आया हूँ, उन उसी ड्रेसिंग रूम से आया हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ इंडिया बेटर टीम है क्योंकि इंडिया के पास मैच विनर जो हैं वो ज़्यादा है। विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, धोनी है, रैना है, मतलब सब अच्छे फॉर्म में भी हैं। और जैसे एंड्रू ने कहा, अश्विन का फिट रहना ज़रूरी है, स्पेशली ये मैच में, क्योंकि इनके पास साउथ अफ्रीका के पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो हैं वो 3-4 हैं, तो वो अच्छे किफ़ायती हो सकते हैं टीम के लिए। तो आई एम श्योर अगर वो खेलते हैं तो ही विल प्ले ए मेजर रोल। क्योंकि हमें तो ये लगता है कि डेल स्टेन जिस टीम में हो उसका सामना कैसे करेगी टीम इंडिया। डेल स्टेन, इज ही दैट डेंजरस? He can be, especially if the ball swings. If the ball swings, he's a lot more effective, obviously. But I don't know if he's bowling quite as fast as he used to. Is he still bowling at 150, high 150s? Oh, I haven't seen him do that for a while. He does, but he has flu. Yeah, okay. So if you strike him on a night where he's bowling fast and the ball's swinging, well, he's going to be difficult. But if not, he's a man that you'll be able to negate. चलिए, तो एंड्रू साइमंस का ये मानना है कि डेल स्टेन में शायद अब वो तेजी नहीं है जिसके लिए एक वक्त पर वो जाने जाते थे। दूसरा, अभी बीमारी से उठे हैं, कितने घातक हो सकते हैं, नहीं है। अगर है भी घातक तो कैसे उनका सामना करेगी टीम इंडिया? इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक।